मंगलाचरणं चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजने नव ज्ञानान्तानि निजादाय नमामि यदनुग्रहतो जन्तु मुखाति भो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षेत्राब्धिसायनम् लक्ष्मीसलीलाभिषेकमानं कलानिधि चतुर्भिश्च સ્વર્ભિર્વિરાજતે રોષ પંચધારવે સદુ પાંડેજી નો બીજો પ્રસંગ જયારે સદુ પાંડે નગરવાસીઓને એટલે બધા બ્રજવાસીઓને કીધું કે મારા ઘરે મહાપુરુષ પધાર્યા છે તો એ બધા આવ્યા હતા એમના ઘરે મહાપુરુષને પાસે આવ્યા હતા મહાપ્રભુજી પાસે અને પછી મહાપ્રભુજીને એમ પૂછ્યું તો મહાપ્રભુજીએ એમ પૂછ્યું કે તમને કેમ ખબર પડી અંદર દેવ દમન છે તો પછી મહાપ્રભુ તો સદુ પાંડેજીએ કીધું કે એક બ્રાહ્મણ હતો એના પાસે એટલી બધી ગાય હતી એના પાસે એક એવી ગાય હતી જે એટલું બધું દૂધ દેતી હતી એક બે દિવસથી દૂધ નથી દેતી અને ગ્વાલ એક વાર લોસ્યું બ્રાહ્મણે કે તું જ ચોરી કરશ ને મારું બધું દૂધ એમ લોસ્યો તો પછી ગ્વાલે કીધું ના હું નથી કરતો તો પછી ગ્વાલ કીધું કે હું કાલે ઘણી નજર રાખીશ ગાય પર ગ્વાલે એમ કીધું પછી એ ગાય પર બધી એટલી નજર રાખી ને એના પાછળ ગયો તો એને ઈ ત્યાં ગયો પર્વત ઉપર ચડી અને ત્યાં ખાધો હતો એ કાણો હતો એના અંદર દૂધ આખો નાખ્યો સવાર સાંજ એમ જ કરે તો એને જોઈ લીધો પછી એને બ્રાહ્મણ ને કીધું તો બ્રાહ્મણ ને એમ કીધું કે તું કાલે તમે ખાલી હાલજો તો એ બી હાલ્યા એમને કીધું તો પછી એમને એટલા થોડા જણાને કીધું અને શીલા મોટી શીલા કાઢી હટાવી તો એમને નીચે એક બાળક નું સ્વરૂપ દેખાણું અને એમને કીધું કે તારું નામ શું છે અમે પૂછ્યું તો એમને કીધું કે મારું નામ હું આ પર્વત રાજા છું મારું નામ દેવ દમન છે દેવ દમન છે એમ કીધું તો પછી મને સદુ પાંડે શું થયું અવાજ નથી આવતો પ્રણામ રુચિર નો અવાજ આવે છે ના જે અહીંયા પણ નથી આવતો દૂધ અને એમને માખણ આપતા દર્શન કરું રુચિર તારો અવાજ બહુ તૂટીને આવે છે તમારું નેટ કામ નથી કરતું લાગતું તો આજે તમે લોકો એવું કરો અહીંયાથી બંસી કે કોઈને કરવાની ઈચ્છા હોય તો કરો આગળનો સિદ્ધાંત મુક્તાવલી પ્રસંગ પછી આપણે કરી લઈશું અને સાનવીને કરવું હોય તો સાનવી કર જય હા નનદ પ્રણામ જય હું ગુજરાતી માંથી કરી શકું જય બંસી તો બોલી નથી રહી એ પણ ચૂપ છે હાથ ઊંચો કરીને ઠીક છે તો કર બીજું તો શું થઈ છે હું કરી લઈશ વાંધો નહીં આપણે તારે હિન્દીમાં કરવાનું છે તું કઈ જવાબ આપ તો મને સમજ પડે કે શું કરવાની છે તું નહીં તો સાનવી કરે
મારો અવાજ મને એવું લાગે છે કે નેટ ની કદાચ મારે ત્યાં સમસ્યા હોય. જોઈ લઉં છું. હવે મારો અવાજ આવે છે ત્યાં? જી 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 આવે છે. એક મિનિટ જોઈ લઈએ, કદાચ અહીંયાથી સમસ્યા હોય ને ના આવતું હોય. રુચિ, હવે મારો અવાજ સંભળાય છે તને? હા, તો ચાલ પૂરું કરી લે પ્રસંગ તારો. શું થયું, ભાગી ગયો રુચિ? પૂરો કરું પ્રસંગ? હા, કરી લે. હવે મને જો તમારે ત્યાં નેટ સ્લો હોય એવું લાગે તો પછી રહેવા દેજો. અત્યારે તું પ્રયાસ કરજો, સંભળાશે અવાજ તો કરી લે પૂરો. જી જી જી. પછી મહાપ્રભુજી એમને કીધું કે હું તારા સાથે કાલે દર્શન કરવા હાલીશ. આમાંથી શીખ મળે છે કે આપણે ઠાકોરજીમાં ઠાકોરજી બી આપણે અનુભવતા જતા આવે અને જેમાંથી શબ્દ નથી કર્યા. અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. હા, હવે તમે કઈ નક્કી કર્યું છે આગળનો શ્લોક કોણ કરવાનું છે એવું કઈ? ભક્તિ બંસી કરવાની છે. હા, તો કરો. जी जी जी। हमने कल देखा था कि कल हमने तीसरा श्लोक किया था कि कृष्ण वो परब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है। तो अक्षर ब्रह्म के भी दो प्रकार है, एक जगत है और दूसरा उससे विलक्षण है। तो उसमें आपने समझाया था कि शास्त्र में ब्रह्म शब्द का प्रयोग दो तरह से होता है, अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म। परब्रह्म श्री कृष्ण है, परब्रह्म का एक रूप अक्षर ब्रह्म है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था कि सूर्य है वो परब्रह्म है और उसका जो प्रकाश है वो अक्षर ब्रह्म है। परब्रह्म है तो अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म कृष्ण है तो अक्षर ब्रह्म कहता है। आप तो किसी को ऐसा सवाल होता है कि परब्रह्म है तो परब्रह्म तो कृष्ण है तो अक्षर ब्रह्म कैसा है? तो उसके लिए कहा है कि सच्चिदानंदकम यानी अंतिम तत्व, अल्टीमेट अंतिम तत्व अक्षर ब्रह्म नहीं है, अक्षर ब्रह्म नहीं है, परब्रह्म है। इसलिए अक्षर ब्रह्म के भी दो प्रकार हैं, एक अक्षर ब्रह्म को वो कारण है जिससे ये बना है। इससे आपने इसका एग्जांपल दिया था कि अल्टीमेट प्राइम कॉज, और दूसरा जो प्रकार है वो जैसे कि उसका पहले जो प्रकार है उसका एग्जांपल आपने दिया था कि सूर्य और उसका जो पूरा जो यूनिवर्स है, तो सूर्य के प्रकाश से जो पूरा यूनिवर्स है उसको रोशनी मिलती है। तो ये आपने पहले में ऐसा एग्जांपल दिया था। और दूसरा जो है
वो पहले वाले से अलग है, पहले वाले से एक विलक्षण है, और अल्टीमेट ट्रूथ अक्षर ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी से सब कुछ बना है। अक्षर ब्रह्म से श्रेष्ठ पर ब्रह्म है। जो श्री ठाकुर जी को परम ब्रह्म मानता है उसको प्राप्त है, और पर जो भगवान जगत रूप अक्षर ब्रह्म को ही अंतिम तत्व मान लेता है उसको सिर्फ अक्षर ब्रह्म प्राप्त होता है, उसको पर ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। जी मुझे इसमें से ऐसा समझ में आया था। जी अब आगे करूं। किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है इस विषय में? बंसी ने जो कहा उस विषय में तो बोलो। ठीक है, मुझे इसमें प्रश्न है कि सच्चिदानंद का मतलब क्या है? किसका मतलब? सच्चिदानंद। हाँ, वो कल बात रह गई थी ना। किसी को कहना है इस विषय में, प्रश्न के बारे में? જે બોલું हाँ बोलो ने। કે મને એવું લાગે છે કે અક્ષર બ્રહ્મ એક જે પરબ્રહ્મ એ સૂર્ય છે અને એના જે કિરણો જે છે અક્ષર બ્રહ્મ છે, એવી જ રીતે જે સ્પેસ ટાઈમ અને ફોર્મ થી અક્ષર બ્રહ્મ અનલિમિટેડ છે, પણ એ અનલિમિટેડનેસ એ લિમિટેડ ફોર્મમાં છે, જ્યારે પરબ્રહ્મ સ્પેસ ટાઈમ અને ફોર્મ થી અનલિમિટેડ જ છે કે અપરિચ્છિન્ન છે। મને એવું લાગે છે સચ્ચિદાનંદ નો મીનિંગ। अच्छा, સમજાયું કઈ? એને વર્ડ ને ડિવાઈડ કરીને ને પછી તું સમજાવ ને, સત પછી ચિત અને આનંદ અને કમ, સમજી લો, કઈ વાંધો નહીં। સતનો મતલબ એક્ઝિસ્ટન્સ, સત્તા, अस्तित्व। चित का मतलब होता है अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस, और हमारी भाषा में चेतना या ज्ञान। और आनंद, आनंद का मतलब है अनंत, एंडलेस, इटर्नल। या उसका मतलब एक सिंबॉलिक वर्ड है आनंद। और जितनी भी अलौकिक शक्तियां हैं, अलौकिक जितने भी गुणधर्म हैं, उनको आनंद शब्द से कहा जाता है। जैसे ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, ये सब। तो ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद। उसमें कम, सच्चिदानंद कम, ऐसे पीछे कप प्रत्यय एक सफिक्स है। ये वो कप प्रत्यय क्यों लगाया है वो बात हमें यहाँ समझनी है, क्योंकि परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म इन दोनों के लिए कोई अलग अलग डिस्क्रिप्शन वेदों में नहीं है। वो रेफरेंस हमें देखना होता है कि जहां पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो रेफरेंस से पता चलता है कि यहाँ पर परब्रह्म कहा जा रहा है या अक्षर ब्रह्म कहा जा रहा है। डिस्क्रिप्शन दोनों का ही एक ही शब्दों में हमें मिलता है। तो अब इसमें महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि कृष्ण तो परब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंदकम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परब्रह्म सच्चिदानंद है और अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंदकम है।
हिंदी में जो कम शब्द है वो भी समझने लायक है। जैसे हम ये कहें दूध में चीनी कम है। कम है का मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे थोड़ी मात्रा उसकी कम है, यानी लेसर। अंग्रेजी में कहें तो शुगर उसमें लेसर क्वांटिटी में है। तो लेसर और एप्रोप्रिएट या कंप्लीट या इन टोटल, इसमें जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पर परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म में समझना चाहिए। परम ब्रह्म तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद है, और अक्षर ब्रह्म तो सच्चिदानंद कम है, यानी जिसमें सच्चित और आनंद कम है, लेसर है। प्रोपोर्शनेटली परब्रह्म से उसमें वो अल्प मात्रा में है। और अल्प मात्रा का मतलब है जो कल तुमने अन्वय ने पढ़ा था ब्रजभाषा में पुष्टि विधानम में से, कि वो तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की जहाँ काउंटिंग हुई है वहां पर आनंद अक्षर ब्रह्म तक तो काउंट किया है, उसके बाद वो अनकाउंटेबल है ऐसा कह दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षर ब्रह्म में जो आनंद है वो काउंटेबल है, गणितानंद जिसको बोलते हैं, गिना जा सके वैसा। और परम ब्रह्म कृष्ण है उसमें वो आनंद अनकाउंटेबल है, अगणितानंद है। अब इसे हम कैसे समझें? तो जैसे हमने अभी सूर्य का उदाहरण लिया, सूर्य में से जो भी रेज निकलते हैं, हीट निकलती है, उनमें उतनी पावर नहीं होती है जितनी खुद सूर्य के अंदर हो। तो सूर्य में अनकाउंटेबल है हाईएस्ट इंटेंसिटी में, तो उससे लेसर सूर्य की किरणों में है। इसी तरह परब्रह्म श्री कृष्ण जब ऐसी इच्छा करते हैं कि अब मैं बाहर सृष्टि बनाऊं, यूनिवर्स को मैं उसका क्रिएशन करूं, तब श्री कृष्ण एक रूप अक्षर ब्रह्म का धारण कर लेते हैं जो सृष्टि का रॉ मटेरियल है या उसका प्राइम कॉज है। तो सृष्टि जिन जिन एलिमेंट्स से बनती है वो सब एलिमेंट्स अक्षर ब्रह्म का एक टोटल है। यानी सृष्टि यूनिवर्स को बनाना है तो सबसे पहले हमें टाइम चाहिए। तो जब भगवान ने संकल्प किया कि अब सृष्टि हो, तब से वो टाइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद सृष्टि बनानी है तो क्रिएशन के लिए स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस अक्षर ब्रह्म ऐसा फैल जाता है कि वो स्पेस बन जाती है। इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं चाहिए हमें बनाने के लिए, जैसे गुण चाहिए, प्रकृति और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इंद्रियां बुद्धि अंतःकरण, रूप रस शब्द गंध इत्यादि विषय, वो सब कुछ अक्षर ब्रह्म के जो जो भी पार्ट्स हैं वो बन जाते हैं। अब ये सब तो अनकॉन्शियस है, यानी मैटर है, मटेरियल, जिसको हम जगत कहते हैं। सृष्टि तो जब तक उसमें कोई लिविंग एंटिटी न हो
जीव तत्व नहीं हो तब तक तो सृष्टि में कुछ भी लीला नहीं हो सकती है। जैसे बहुत सारे खिलौनों को लाकर रख दिया जाए बच्चे के सामने, पर उसके साथ दूसरा कोई खेलने वाला दूसरा बच्चा नहीं हो, तो वो उन सब अनकॉन्शियस खिलौनों से कब तक खेलेगा। तो अक्षर ब्रह्म का जो चित्त है, मतलब ये जितना भी अनकॉन्शियस है, वो अक्षर ब्रह्म का सत बना है। सत यानी मटेरियल जो एस्पेक्ट है अक्षर ब्रह्म का, और चित एस्पेक्ट जो है सत्य, उसके बाद चित यानी कॉन्शियसनेस, वो सब जीव बने। तो जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है उसकी टोटालिटी अक्षर ब्रह्म का सत्य है। तो हम सब जितने भी यहाँ पर जीव चैतन्य हैं, छोटे छोटे कॉन्शियसनेस हैं, उसकी टोटालिटी अक्षर ब्रह्म का चित्त है। और आनंद जो है वो इस सृष्टि में भगवान ने नहीं प्रकट किया है। यानी यूनिवर्स का क्रिएशन जब भी भगवान ने किया है, तब उसमें से जो आनंद है वो भगवान ने उसमें छुपा दिया। वो है सही, पर वहां वो इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे हम खिलौने लाते हैं, पुराने समय में चाबी वाले आते थे खिलौने, आजकल बैटरी सेल वाले आते हैं। कहीं बटन होते हैं, कहीं पेंसिल सेल होते हैं, कहीं बड़े सेल होते हैं, कहीं चार्जेबल होते हैं। तो जब हम बाजार से लाते हैं तब उसमें अगर वो बैटरी देते हो, तो बैटरी के जो दोनों छोर होते हैं वहां पर एक प्लास्टिक की स्ट्रिप लगी हुई होती है, जिससे कि उसमें से जो एनर्जी है वो वर्किंग ऑर्डर में ना आए, नहीं तो वो बैटरी सेल खराब हो जाते हैं। तो हम उस खिलौने के बटन दबाते हैं पर वो चलते नहीं है। उसमें वो आनंद तो है, पर अभी इनएक्टिव है। उसका मैन्युअल हम देखें तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपको इसको ऑपरेट करना है तो आप इसमें से वो प्लास्टिक स्ट्रिप हटा दोगे तो उसमें वो शक्ति आ जाएगी। तो उसको हम खींच लेते हैं, उसके बाद वो चलता है। यानी उसमें वो कॉन्शियसनेस और आनंद जो भी है वो सब उसमें रिवील हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो सत, चित और आनंद का मतलब ये है। सत यानी एग्जिस्टेंस, चित यानी कॉन्शियसनेस, सत्ता चैतन्य, और आनंद यानी सभी तरह के, या तो उसका अर्थ ये कहो कि अनंतता है, या उसका अर्थ ये कहो कि जितने भी अलौकिक, जितने भी गुण शक्ति हैं वो सब। तो परब्रह्म भी सच्चिदानंद है, परंतु अक्षर ब्रह्म में वो सच्चिदानंद परब्रह्म की कंपैरिजन में अल्प है, कम है, लेसर। ये इसका मतलब है। और उसका प्रमाण ये है कि भगवान जब ऐसे ये चाहते हैं कि अब सृष्टि, उसको हम आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और सृष्टि की जो लीला है उसको हम अभी समाप्त कर देना चाहते हैं, तो फिर अक्षर ब्रह्म भी नहीं रह जाता है, वो परब्रह्म में लीन हो जाता है, या अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म एक हो जाते हैं। जैसे हम कभी कोई, तुम लोगों ने सांप का मदारी का खेल देखा हो, या कठपुतली का खेल देखा हो। छोटे मोटे जादूगर होते हैं, वो सड़क पर जादूगिरी बताते हैं। तो एक चद्दर बिछा देते हैं और अपना सामान खोल कर और हमारा मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन हो जाने के बाद फिर उसकी गठरी बांध कर और उठा कर ले जाते हैं।
इस तरह भगवान भी अपनी गठरी खोल देते हैं, वो अक्षर ब्रह्म हो जाता है, उसमें से सब चीजें निकालते हैं, वो काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष, अगर सांप बिल्ली चूहा भालू कुछ भी ऐसा हो तो वो भी सब उसमें से चेतन अचेतन सब प्रकट हो जाते हैं, देवता दानव मानव सब। और भगवान ये चाहते हैं कि अब मुझे आगे नहीं खेलना है, मुझे आराम करना है, तो फिर से वो जो फैला हुआ है उसकी गठरी बांध देते हैं, तो फिर वो अक्षर ब्रह्म भी परमात्मा से अलग नहीं रह जाता है, उनमें सिमट जाता है। इस तरह से परम ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म इन दोनों को समझो। और कल मैंने वो तो समझाया ही था कि उसके दो रूप होते हैं, एक जगत रूप और दूसरा भगवान का धाम। तो अक्षर ब्रह्म ही भक्तों को भगवान के धाम के रूप में प्राप्त होता है, और जो ज्ञानी होते हैं, तत्व का चिंतन करने वाले होते हैं, उनको जगत के कारण के रूप में जो अक्षर है वो प्राप्त होता है, व्यापकता के रूप। उसका उदाहरण मैंने किसान का घर और किसान का खेत, उसका उदाहरण मैंने दिया कि अनाज का ग्राहक कोई पूछता हो तो उसको किसान का खेत है वो उसका एड्रेस होता है, मीटिंग पॉइंट। और अगर किसान का कोई व्यक्तिगत अतिथि हो तो उसका खेत में जो घर है वो उसका एड्रेस बन जाता है। जगह एक ही है, पर जिसकी जैसी योग्यता हो उस तरह से उसको वो स्थान प्राप्त होता है, ये इसका मतलब है। आ गया समझ में? मुझे इसमें से ये समझ में आया कि जो सच्चिदानंद कम है वो सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य यानी सत्ता अस्तित्व, चित्त यानी कॉन्शियस चेतना, और आनंद यानी कि अनंत काल, या तो उसको ये भी कह सकते हैं अलौकिक गुण शक्ति या गुणधाम, गुण धर्म को आनंद कहते हैं। और जो सच्चिदानंद है वो परब्रह्म श्री कृष्ण है, पर सच्चिदानंद कम है वो अक्षर ब्रह्म के लिए कहा है, क्योंकि जो आनंद है वो जो अक्षर ब्रह्म का आनंद है वो लिमिटेड है, और परब्रह्म का आनंद है वो तो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेड। आवाज कट रही है भक्ति की, ठीक है। और किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो? જે મને આનામાંથી એવી સમજણ પડી કે સચ્ચિદાનંદમાં સત ચિત અને આનંદ આવે છે. સત એટલે એક્ઝિસ્ટન્સ, ચિત એટલે કોન્શિયસનેસ, અને આનંદ એટલે અનલિમિટેડનેસ. એટલે જે પરબ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ अक्षर ब्रह्म परब्रह्म की अगर इच्छा होगी तो मतलब अक्षर ब्रह्म के रूप में ही हम सब हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम जीव हैं, जगत है वो भी अक्षर ब्रह्म है, और हम हमारा उद्धार होकर प्रभु के धाम में जाएंगे वो भी अक्षर ब्रह्म के रूप में ही वो धाम है। मुझे इसमें से ये समझ में आया जी। हाँ ठीक है। हाँ अर्पण बोल, तारी बात वच्चे रही गई। અને ભક્તિનું નેટ સ્લો છે ને એટલે એને આપણી વાત થોડી લેટ સંભળાય છે. હા કર. અને એટલે સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ છે અને સચ્ચિદાનંદ કમ એ અક્ષર બ્રહ્મ છે. એટલે સચ્ચિદાનંદ કમ એ અનકાઉન્ટેબલ છે, કે જેવી રીતે સૂર્ય જે છે એનું હીટ કે અનકાઉન્ટેબલ છે, પણ એના જે કિરણો જે છે એનું હીટ કાઉન્ટેબલ છે. એટલે એ જે કિરણો જે છે અક્ષર બ્રહ્મ છે અને સૂર્ય પરબ્રહ્મ છે. અને અક્ષર બ્રહ્મ પરબ્રહ્મ અક્ષર બ્રહ્મના ફોર્મમાં જાય છે આ જગતને ક્રિએટ કરવા માટે. એટલે જે
જીવ જગત એ બધું અક્ષર બ્રહ્મ છે અને જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીને આપણે એમના ધામમાં જઈએ તો તે પણ અક્ષર બ્રહ્મ છે એટલે અક્ષર બ્રહ્મના બે ફોર્મ હોય છે, એક જગત અને બીજું વિલક્ષણ. એવી સમજણ પડી છે. બહુ સારું. હવે બંસી, હવે આગળ આપણે ધીરે ધીરે જ વધીએ. આટલું તમે सारी रीते समझी लो, क्योंकि आज सिद्धांत मुक्तावली जो ग्रंथ है वो बहुत ही गंभीर है और छोटी छोटी बातें कई बार बोलने पर, पूछने पर, सुनने पर समझ में आती है, स्थिर होती है. तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, इतना एक बार स्थिर कर लो, कल इसको फिर से बोल के समझा दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे.